Very good afternoon, dear students, dear listeners, dear friends, and dear followers. Now, in today's video, we will discuss about the topic episode in the play The Merchant of Venice. As we know, there are many episodes or stories in the play, as the Bond story or episode, as the Ring story or episode, as the Casket story or episode, or Jessica and Lorenzo's love story. Now, in this video, we will discuss about the first story, the Bond story. प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों और प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस के उस एपिसोड के बारे में जिस एपिसोड के इर्द गिर्द मर्चेंट ऑफ वेनिस के तमाम दूसरे एपिसोड घटित हुए हैं, या जिसकी वजह से मर्चेंट ऑफ वेनिस के तमाम दूसरे एपिसोड अपने अस्तित्व में नज़र आते हैं। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं सब्जेक्टिव, उससे आप समय रहते अवगत हो सकें। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द एपिसोड द बॉन्ड एपिसोड। एज वी नो, द बॉन्ड एपिसोड इज द मेन and the important part of the play. Because of this Bond episode plays an important part, and due to this, as Bond episodes event happened in this play, the other episodes as the Casket episode and after that the Ring episode happened in the play. Many of the writers or the scholars said that if the Bond episode didn't happen in this play, it is possible or it may be possible that the end of the play would go to another direction and the story would be different from this. As we know, the Bond story, assignment or a documents signing between two, or those were the rivals of each other, Antonio a Christian and Shylock a Jew. As Bassanio came to Antonio to beg some amount as 3,000 ducats to go to Belmont to try his luck to get married to Portia. Antonio had no ready money at that time. Then Bassanio, to fulfill the desire of Bassanio, Antonio promised him to manage the amount from somewhere. Now Antonio had taken the 3,000 ducats amount to Shylock, his great rival in the play The Merchant of Venice. As Antonio appeared in the palace of Shylock, Shylock remarked that Antonio should remember about the things or about the sayings when he called many times Shylock dog, rascal, and so on publicly. But at last Shylock agreed to give him 3,000 ducats as a debt amount. But one thing here is important. Shylock informed Antonio that he would not charge any single rupee to Antonio, but Antonio would have to sign the bond on which it was written or mentioned that
if Antonio fails to pay back the money within 3 months, then Shylock would have right to cut 1 pound of his flesh of his body near his heart. Shylock put this bond before Antonio, and Antonio signed it. Having signed the bond, Antonio took the money and handed over it to Bassanio. Bassanio started his journey, but as Antonio believed and hoped that his all ships would come within 3 months and he would pay the amount of Shylock what he had taken on his behalf to give Bassanio, but his all ships had drowned in the sea or lost away. The time was over. Shylock just had taken the matter in the court before Duke and demanded justice according to the bond as it was mentioned, and Antonio signed it. Now it was a foolproof conspiracy or plan against Antonio of Shylock to kill him anyhow, to take the revenge of his past doings, because the other one main thing, Shylock was Jew and Antonio was Christian, and Shylock hated Christian and disliked Christianity. Shylock appealed before Duke that he wanted justice and he demanded it as mentioned in the bond according to it. But at last, Portia appeared disguised as a learned lawyer and appealed Duke and just opened the Venice city laws, and according to the law of Venice city, at last Shylock was defeated in his plan or conspiracy against Antonio, and anyhow by his luck Antonio won the case due to Portia's intelligence and her appearance. All these things proved here that the Bond story gave a new life to the other story of the play, as the casket story and the ring story. If this was not happened in the play, the other things would not be happened or could not be happened. So we can say at last the Bond story is the main and the chief part of the play The Merchant of Venice. प्रिय छात्रों, बात हो रही है उस बॉन्ड स्टोरी की जिस बॉन्ड स्टोरी को एंटोनियो ने साइन किया था शाइलॉक से पैसा उधार लेने के लिए। लेकिन उससे पहले ये चर्चा ज़रूरी है कि बॉन्ड स्टोरी का महत्व क्या है, उसका क्या महत्व इस पूरी कहानी में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉन्ड स्टोरी जो है वो एक ऐसी स्टोरी और एपिसोड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का, जिसके घटित होने के बाद कास्केट एपिसोड और रिंग एपिसोड की घटनाएं घटित हुई। यानी इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बॉन्ड स्टोरी जो है वो कास्केट स्टोरी और रिंग स्टोरी के घटित होने का एक साधन रहा है, एक सोर्स रहा है। यदि बॉन्ड स्टोरी जैसी घटना मर्चेंट ऑफ वेनिस के इस प्ले में घटित ना हुई होती तो शायद जो अदर्स स्टोरीज और एपिसोड्स घटित हुए हैं वो ना हुए होते और कहानी का अंत कुछ और भी
हो सकता था किसी और दिशा की ओर भी कहानी जा सकती थी। बॉन्ड स्टोरी जरूरी भी थी क्योंकि जिस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने इस कहानी का अंत किया है और एक घटना के बाद दूसरी घटना को जोड़ते हुए इस पूरे प्ले की, पूरे नाटक की उन्होंने रचना की है, ऑडियंस के लिए और रीडर्स के लिए जो बड़ा सरप्राइजिंग रहा है, बड़ा आश्चर्यमय रहा है। एक ज़रूरी घटना थी जो कि विलियम शेक्सपियर के लिए ज़रूरी थी कि इस प्रकार का कोई एपिसोड वो इसमें अंकित करें जैसा कि उन्होंने किया। आइए जानते हैं कि बॉन्ड स्टोरी आखिर थी क्या। बॉन्ड स्टोरी एक वो घटना है जो एंटोनियो के द्वारा एक शपथ पत्र पर साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, और उस शपथ पत्र में शाइलॉक के पास जब एंटोनियो पहुंचते हैं बेसिनियो की मदद करने के लिए, अपने बिहाफ पर कुछ पैसा लेने के लिए, शाइलॉक उनको पहले तो ये याद दिलाता है कि याद करो एंटोनियो कि तुमने कितने बार मुझे भरी सभा में पब्लिकली लोगों के सामने सड़क पर खुलेआम मुझे अपशब्द कहे हैं, मुझे भद्दी गालियां दी हैं और मुझे तमाम जो हैं वो गलत नामों से संबोधित किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त यह है कि यदि तुम पैसा मुझसे उधार लेना चाहते हो तो तुम्हें एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना पड़ेंगे, और जिस बॉन्ड में ये अंकित है या होगा कि यदि तुम पैसा समय पर चुकाने में असमर्थ होते हो तो मैं तुम्हारे शरीर में हृदय के पास से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा काट लूंगा। एंटोनियो बगैर कुछ सोचे समझे उस शपथ पत्र पर, बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाता है और अंत में हस्ताक्षर कर भी देता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि उसके समुद्री जहाज जो बिजनेस करने के पर्पज से गए हुए हैं वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे और 3 महीने के अंदर ही उसके पास जितना पैसा वो शाइलॉक से उधार ले रहा है उसका 3 गुना पैसा देने की वो क्षमता रखेगा और सक्षम होगा। इसलिए बगैर कुछ सोचे समझे एंटोनियो शाइलॉक से पैसा उधार ले लेता है और उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर देता है। समय गुजर जाता है, एंटोनियो के जहाज वापस नहीं लौटते हैं। एंटोनियो को ये खबर मिलती है कि शायद उसके जहाज समुद्र में डूब गए हैं या कहीं भटक कर रास्ता खो चुके हैं और फिलहाल वापस नहीं आए हैं। एंटोनियो पैसा देने में असमर्थ होता है। शाइलॉक उस शपथ पत्र के आधार पर अदालत में इस बात की अपील करता है कि उसे न्याय चाहिए इस बॉन्ड में जैसा कि अंकित है उसके अनुसार। अब क्योंकि शाइलॉक की एक षड्यंत्र था, ये उसका एक पूरा प्लान था, उसकी चाल थी एंटोनियो से तमाम पुरानी बातों का और उससे क्रिश्चियन होने का बदला लेने के लिए। एंटोनियो शाइलॉक को मारने का इस तरीके से पूरा प्लान करता है जैसा कि शपथ पत्र में अंकित था, लेकिन यह एंटोनियो के भाग्य की ही बात थी कि उसका भाग्य उसके साथ था और उसकी मृत्यु निश्चित उस वक्त नहीं थी। पोर्शिया का अपीयरेंस होता है, पोर्शिया वहाँ हाजिर होती है ड्यूक के दरबार में और एक विद्वान वकील का भेष धारण करके वो वहाँ आती है, ड्यूक के सामने वेनिस शहर के नियमों को रखती है। वेनिस शहर के नियमों के अनुसार ये साबित हो जाता है कि एंटोनियो के खिलाफ शाइलॉक के द्वारा ये जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया था, एक प्लान किया गया था उसको मारने के लिए, और इस प्रकार से शाइलॉक अपने ही द्वारा बुने हुए जाल में स्वयं फंस जाता है और अंत में इस मुकदमे को हार जाता है। और इस प्रकार से इस बॉन्ड एपिसोड में, इस घटना में एंटोनियो की विजय होती है। हम निश्चित रूप से अंत में ये कह सकते हैं कि वाकई में ये जो बॉन्ड एपिसोड की घटना थी ये एक मुख्य आधार है इस पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का, क्योंकि यदि ये बॉन्ड एपिसोड की घटना ना घटित होती, एंटोनियो शाइलॉक से यदि बेसेनियो के लिए पैसा उधार ना लेता तो शायद बेसेनियो बेलमोंट ना पहुंच पाता और कास्केट एपिसोड की जो घटना हुई, उसके बाद जो रिंग एपिसोड की घटना हुई, ये सारी घटनाएं ना घटित होती और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बॉन्ड एपिसोड की जो घटना है वो मुख्यतम घटना है, श्रेष्ठतम घटना है और प्रथम घटना है, जिसके घटने के इर्द गिर्द तमाम घटनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं और जिसके साथ साथ चल रही हैं। और इस प्रकार से बॉन्ड एपिसोड एक मुख्य घटना है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉन्ड एपिसोड ने या इस घटना ने इस मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के अंदर अपना रोल
प्ले किया है।